محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا، چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہیں۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز، نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کو بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لائے جائے۔ منعقدہ اجلاس میں سی ایم KCR کا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ریاستی وزراء، ضلع کلکٹران، CPs، SPs نے تلنگانہ MCET کے نتائج کی جائی عمل میں لائی گئی۔ ہمیشہ کی طرح لڑکیوں نے لڑکوں پر کی سبقت حاصل۔ آل انڈیا سول سروسز میں بہترین مظاہرہ کرنے والے ضلع کے طلباء کو ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے دی مبارکباد۔ RTC چیئرمین و رورل MLA باجریڈی گوردھن نے رورل کیمپ دفتر میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی شادی مبارک چیکوں کی مورتاڑ منڈل کے مستحقین میں کی فراہمی۔ KCR و آرمور MLA جیون ریڈی کی موجودگی میں مختلف پارٹیوں سے وابستہ قائدین نے BRS پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ ضلع عادل آباد کے اخلاقی مسائل پر اخلاقی کمیشن چیئرمین طارق انصاری سے سیوا فاؤنڈیشن صدر خواجہ نصیر الدین کی نمائندگی۔ طارق انصاری کو تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز کمیشن نامزد کی جانب پر خواجہ سراج الدین صدر سیوا فاؤنڈیشن عادل آباد نے ان کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کی شال پوشی گلدستہ پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر خواجہ سراج الدین نے ضلع عادل آباد میں اخلاقوں کی درپیش مسائل سے واقف کروایا، جن میں قابل ذکر سرکاری حکم نامہ 58 کے تحت مستحق خاندانوں کو اراضی کی پٹہ جات اور ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت مکانات فراہم کرنے، تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز فائنانس کے تحت ضلع عادل آباد میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کرنے کے علاوہ خواتین و لڑکیوں کے لیے مختصر مدتی خود روزگار سے مربوط کورسز کے ٹریننگ سینٹر کا قیام، ٹیمریز ادارے جات میں کتب خانوں، تجربے گاہوں، لیبس کے ساتھ ساتھ مادری زبان و اختیاری قومی درس و تدریس کا نظم کرنے، طلباء و طالبات کی تعلیمی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور اسپورٹس مقابلوں کا انعقاد عمل میں لانے کے علاوہ طلباء کی طبی علاج و معالجے کے لیے اسپیشل لیڈی ڈاکٹر کا تقرر، ضلع میں صنعت و حرفت کے قیام، ضلع عادل آباد میں تعمیر
تعمیر کیے جا رہے IT ہب کے کاموں جنگی پیمانے پر تعمیراتی عمل میں لانے کے لیے اقدامات کرنے پر طارق انصاری نے بغور سماعت کیا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کے لیے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو اس جانب توجہ مبذول کرواتے ہوئے اس کی بھی کریں گے۔ طارق انصاری نے سیوا فاؤنڈیشن ضلع عادل آباد کی جانب سے انجام دی مختلف فلاحی و سماجی خدمات کو نیک و فعال قرار دیا۔ انہوں نے سیوا فاؤنڈیشن کے تمام عہدیداروں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضلع عادل آباد کا دورہ کرنے کا اظہار کیا۔ طارق انصاری نے سیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے خواجہ سراج الدین سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر محمد یوسف الدین خان سینئر جرنلسٹ و ایڈیٹر نیوز اینڈ ویوز میڈیا سروس نظام آباد اردو لیکس بھی موجود تھے۔ سیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے صدر جناب سراج صاحب عادل آباد سے آج ہمارے حمید عزیز خان صاحب کے ہمراہ اور تہنیت کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ میں اس کو جو خدمت انجام دے رہے سیوا فاؤنڈیشن وہ قابل ستائش ہے اور آگے بھی جو ہے مستقبل میں بھی جو ہے ان کے جو تنظیم ہے مختلف سماجی کامیں کرتی ہیں عادل آباد میں اور ان کے بھی جو ہے خدمت انجام دیں گے اور کمیشن سے جو مدد مل سکتی ہے اس سماجی کام کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کمیشن بھی آگے آتے ہوئے جو ہے ہمت افزائی کا باعث بنے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی محبتوں کے لیے، جتنے بھی لوگ چاہنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہماری فکر میں ہماری جو ہے محبت میں یہاں تک پہنچے ہیں، سلام کا جو ہے مشکور ہے۔ ملن رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ راجستھان پولیس نے ٹی راجہ سنگھ کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے معاملے میں کیس درج کیا۔ راجستھان پولیس نے BJP کی معطل ملون MLA ٹی راجہ سنگھ کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے معاملے میں کیس درج کر لیا ہے۔ راجہ سنگھ نے خلاف یہ مقدمہ کوٹا میں درج کیا گیا ہے، جہاں اس نے مہارانا پرتاپ جینتی کے موقع پر منعقدہ سوریہ واہن ریالی اور سوابھیمان سبھا کے اجلاس کے علاوہ ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ راجہ سنگھ کے خلاف تقریر کے دوران مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کرنے والے الفاظ کے استعمال پر کیس درج کیا گیا۔ اگر کسی لو جہادی کو ٹھوکنا ہے تو بجرنگ دل سے جڑیے۔ کیا آپ سب لوگ ہندو راشٹر چاہتے ہو؟ ہندو راشٹر چاہتے ہو؟ اپنے فون کی ٹارچ لائٹ کھول کے بتاؤ، رات میں تارے زمین پر دکھنے چاہیے، رات میں تارے زمین پر دکھنا چاہیے اور ہمیں پردھان منتری مودی جی ایوم ان تمام نیتاؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہندو راشٹر بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک اکبر تھا، آج ہر گلی ہر چوراہے پر اکبر کی ناجائز اولادوں کی سنکھیا ہمیں بہت زیادہ دکھتی ہے۔ ہمیں کسی سے پنگا نہیں ہے، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر ہماری بہن بیٹی، اگر ہماری گو ماتا کے طرف اگر انگلی اٹھا کے دیکھو گے، آنکھ اٹھا کر دیکھو گے تو تم جو بھاشا سمجھو گے ہم وہی بھاشا سمجھائیں گے۔ اب وہ دن دور نہیں کہ دھیریندر شاستری جی بھاگیشور دھام کے مہاراج جی اکھنڈ ہندو راشٹر بنیں گے۔ CM KCR کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی و ترقیاتی اسکیمات سے متاثر ہو کر نندی پیٹ منڈل کے دتاپور دیہات سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین نے ضلع BR صدر آرمر MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں BRS پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی و ترقیاتی اسکیمات کے علاوہ جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر نندی پیٹ منڈل کے دتاپور دیہات سے تعلق رکھنے والے کانگریس پارٹی کے قائدین نے ضلع BR صدر آرمر MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کیا گیا۔ بعد آرمر MLA جیون ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں بڑے پیمانے پر تلنگانہ تحریک چلائی گئی تاکہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تلنگانہ کے عوام کی خواہشوں کی تکمیل عمل میں لائی جائے۔ مختلف جدوجہد اور کاوشوں کے سبب 14 سال بعد آخر کار تلنگانہ کی ریاست تشکیل عمل میں لائی گئی۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد عوام نے TRS پارٹی کے اقتدار فراہم کیا۔ اس دوران ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے مثالی اقدامات کو متعارف کروا کر روب عمل میں لایا جس کی پورے ہندوستان میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ MLA جیون ریڈی نے کہا کہ 2014 سے پہلے ریاست میں وظائف کے نام پر
सिर्फ 200 रुपये फ्राहम किए जाते थे, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने आशा पेंशन में इजाफा किया और हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज मामरीन बेवाओं बैंकरों एड्स ताड़ी सिंधु को हर माह 2016 रुपये वज़ाइफ जारी करते हुए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में गरीब अवाम के लिए बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इसके अलावा रियासती हुकूमत बिला लिहाज मतबू मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाई वो तरक्याती स्कीमात के तहत रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे मुल्क भर की अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुल्क की क़ियादत करने की तौक़ी कर हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को बावक़ार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत फी लड़की को 1,116 रुपये दे रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर जो एक सेकुलर जहन के हामिल शख्सियत है, जिन्हें अखलाती दोस्त का शर्फ हासिल है, तो कहीं मुफलिस गरीब बेयारों मददगारों का मसीहा के तौर पर माना जाता है। वज़ीर आला केसीआर कहते हिंदू मुस्लिम मेरे दोनों आँखें। केसीआर की रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ इकसर तौर पर एहतराम करने में मुनफरिद मिसाल रखते हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इख्तिदार संभालने के बाद से रियासत के तमाम तबक़ात व बिलख़ुसूस मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करे हैं। वज़ीर आला जिन्होंने अखलतों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात को मुतारफ़ किया। केसीआर रियासत के मिसाली वज़ीर आला है जो अखलतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के तई नर्म गोशा रखते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। इनका सबसे अजीम कारनामा रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त अनासिर को मजबूत होने के खदशात ज़ाहिर होने पर केसीआर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली और दूरअंदेशी से गैर महसूस तरीक़े से इन खदशात को दूर किया और केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अखलतों की माशी पसमानदगी दूर करने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क के वज़ीर आला है जिन्होंने अखलतों की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए रास्त तौर पर इसकी समरात से फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अक़ामत स्कूल्स व हॉस्टल्स को कायम किया गया है और आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर केसीआर हुकूमत लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ़राहम कर रही है। MLA जीवन रेड्डी ने बताया कि केसीआर रियासत तेलंगाना के गरीब अवाम के फलाह बहबूद के लिए स्कीमात का ऐलान ही नहीं करते बल्कि इन स्कीमात को रूबे अमल में लाने में ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते हैं और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में गरीब व मुस्तहिक़ अफराद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज़ करते हुए इन्हें रूबे अमल में लाने के लिए न सिर्फ अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है बल्कि अवाम में शऊर बेदारी करते हुए स्कीमात से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने और इन स्कीमात के समरात मुस्तफ़िद करवाने में कारबन होने का इजहार किया। रूरल MLA कैंप दफ्तर पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मोरताड़ मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने रूरल MLA कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मोरताड़ मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। इस मौके पर रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एकसा बर्ताव करते हुए KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। आज इसी मकसद के तहत मोरताड़ मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में 83 चेकों की फ़राहमी अमल में लाई गई और इसी तरह से हर 3 माह में एक बार हर एक मंडल में CM KCR की मदद से 1,116 रुपये देते हुए एक साल में 20 करोड़ 50 लाख रुपए की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि एक मुप्पल मंडल में हर माह 8,577 अफराद को पेंशन की शक्ल में 1,70,05,000 रुपये हर माह ओल्ड एज पेंशन और बेटी पेंशन के तहत खवातीन को मामरीन को वजीफा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आज तेलंगाना हुकूमत में ही गरीब अवाम के लिए अक्सर स्कीमात को अमल आवरी की जा रही है जिसमें शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी ज़ईफ़ अफराद को पेंशन, ज़रई किसानों के लिए रायतु बीमा, ज़रई किसानों के लिए 24 घंटे बरक़े की सहूलत की फ़राहमी की जा रही है। मिशन भगीरथ स्कीम के तहत घर घर को मुफ्त पीने का पानी की सरबराही का नज़्म। इस वक्त मौसम गर्मा में भी पानी की किल्लत न होने के लिए हर रोज़ पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में
रूप अमल में स्कीमात कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम, रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरखे की फराहमी व दीगर मुनफरिद स्कीमात किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी श्रीमती लता कन्नेराम, ZPDC कमला नरेश, मंडल सदर श्रीनिवास नोडा, डायरेक्टर श्रीनिवास राव, सोसाइटी चेयरमैन, डायरेक्टर्स, BRS पार्टी से मुताल्लिक़ संगम के खादिन, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTC स्नैप सरपंच, कारकुनान के साथ साथ अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। నమ్మకం మీరు మమ్మల్ని చేస్తున్నారు, తప్పకుండా ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నారు, 2 సార్లు గెలిపించండి మీరు. ఫ్యూచర్లో కూడా మీరే మీ దేవుడే గెలుస్తామని నమ్మకం మాకుంది. మొగోళ్ళు కాదని కాదు, మొగోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మొగోళ్ళు 3 భాగాలు అవుతారు. ఒక గ్రూప్ బీజేపీ ఉంటుంది, ఒక గ్రూప్ కాంగ్రెస్ ఉంటుంది, ఒక గ్రూప్ మాకు ఉంటుంది. కానీ 82% మాకు మీరు మాకు ఉంటారు, గ్యారంటీ గెలుస్తున్నాం. బట్ దయచేసి చెప్తున్నా ఒకటే మాట, ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడో, ఏ వ్యక్తి అయితే మీ అందరినీ మా చెల్లెళ్ళు మా అక్కలు అనుకుంటున్నాడో, ఆ వ్యక్తిని మీరు కాపాడుకోవాలి. ఆ బాధ్యత మీ మీద ఉంది. కాబట్టి నేను ఒకటే మనవేస్తున్నా, ఇవాళ 85 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం మనం. అదే 85 లక్షలు నెట్ తీసుకొచ్చి పెడితే ఇవన్నీ అవుతుండే నుండి గట్ల వేసుకోపోతుంది, 1 లక్ష అంటే చెప్తున్నా. అట్లా కాకుండా ఒక చిన్న స్లిప్ ఇస్తున్నారు, మాకేమి ఇచ్చిండు, చెక్ ఇచ్చిండు కాదు. చెక్కు కూడా ₹1,00,000 చెక్, అది బ్యాంకులకు వద్ద 1,00,000 ఇస్తాం మనం. ఇంకా కొన్ని లక్షలు ఇచ్చినాం మనం. నేను CMRF ఇస్తున్నాను మనం. CMRF నేను ఈరోజు దాదాపు 23 కోట్లు ఇచ్చాం మనం CMRF జనాలకు, మన వాళ్ళకు. మనకు కాన్సెన్స్ లేదు. అంటే దాదాపు నెలకు 60 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में संगम की सदारत बी चिन्ना नरसैया की सदारत में सब्सिडी के तहत तेल के बीजों की किसानों में फराहमी अमल में लाई गई। एरगटला मंडल के मराकज़ पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में संगम के सदर बी चिन्ना नरसैया की सदारत में किसानों को सब्सिडी के तहत तेल के बीजों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर एरगटला सोसाइटी चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि 30 kg के बैग को सब्सिडी के तहत किसानों को 842 रुपये में दिया जा रहा है। लिहाजा किसान अपने साथ आधार कार्ड, पट्टा, पासबुक रखते हुए 30 किलो के बैग को हासिल करने की ख्वाहिश की और कहा कि KCR हुकूमत के इख्तिदार में किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात रूप अमल में लाई गई, जिसमें किसानों की माली मदद के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फेंककर अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं, जिससे ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। और दूसरी तरफ KCR ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रैतु बीमा का भी आगाज़ किया है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों की विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। KCR की फलाही स्कीमात के हर कोई मुतरादिफ होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP उपेंद्र रेड्डी, ZPDC G राजेश्वर, मंडल ज़राई अहदेदार अब्दुल मलिक, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर S अंचैया, रैतु बंधु ज़िले मेंबर N लिंगारेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंच G लावण्य गंगाधर, P प्रकाश, MPTC जक्कनी मधुसूदन, ताला रामपुर, PACS चेयरमैन P श्रीनिवास रेड्डी, संगम वाइस चेयरमैन S गंगाराम, डायरेक्टर्स B हनुमंटलू, KP श्रीनिवास, सोसाइटी डायरेक्टर्स मेम्बरान के अलावा मुकामी अवामी नुमाइंदे, खादिन, कारकुनान व मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा सेक्रेटरी वो दीगर ने शिरकत की। मुल्क की तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR की क़यादत वक्त का तकाज़ा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े अरसापल्ली पावर गार्डन में मुनक़िदा BRS ख़ुसूसी मुलाक़ात प्रोग्राम से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी डी गोवर्धन का खिताब। शाह निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े अरसापल्ली पावर गार्डन में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले BRS ख़ुसूसी मुलाक़ात प्रोग्राम से TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजी डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि BRS अवामी पार्टी और बिला लिहाज मज़हब मिलत अवाम की तरक्की, फलाह व बहबूद इसका अवलिन मकसद है। गुज़िश्ता 9 बरसों में तेलंगाना ने मिसाली तरक्की की। मुल्क की कोई और रियासत तेलंगाना की तरह फलाही स्कीमात की मिसाल पेश नहीं कर सकती। वज़ीर आला KCR सेकुलर कायदे और मुल्क भर में इनकी मकबूलियत है और रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क की किसी रियासत में बेसहारा तनहा ख़वातीन के लिए वज़ाइफ नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूप अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होने वाले BJP और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की जानिब से आयद किए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात का हर एक BRS कायद व कारकुनान को जवाब देना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले के चेयरमैन सामारी मोहन, ZPDC सुमलता, वाइस MPP A साइलू व दीगर ने शिरकत की।
ప్రతి ఒక్కరిని చూసుకోవాలా, ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనే ఆలోచనతో నేను పార్టీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. ప్రజలకు కూడా సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నాము. గ్రామాలలో ప్రజల కోరిక మేరకు సీసీ రోడ్లు కానీ, కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ, ఇతరత్ర ఏదైనా తుచ్చ తక్కువ చేస్తున్నాను. ఆ యొక్క यौम तासीस तेलंगाना तकारीब को त्यौहार के तौर पर मनाने की सीएम केसीआर जिले कलेक्टरान को अहकामात जारी किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में यौम तासीस तेलंगाना के इफ्तिताही तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में सीएम केसीआर की सदारत में कलेक्टरान के साथ इजलास जारी है, जिसमें रियासती वज़ीरा हुकूमत के मुशीर, वज़ीर आला के मुशीर, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी, CMO सेक्रेटरी, जिले कलेक्टरान के अलावा DGP, जिले SP, आला सरकारी अफसरान व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने मौजे के सतह से रियासती सतह तक की सरगर्मियों के अलावा देहातों व हल्के ज़िले में मरहलेवार तरीक़े से किए जाने वाले प्रोग्राम्स के ताल्लुक़ से वजाहत की और यौम तासीस तेलंगाना तकारीब से मुताल्लिक़ अखराजात के लिए कलेक्टरान को 105 करोड़ फंड्स की इजराई अमल में लाने के ताल्लुक़ से सीएम केसीआर की जानिब से फैसला किया गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने शिरकत की। इस माह की 26, 27, 28 तारीख को हरी दिल ध्यान योगा तकारीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का IMA जिले जनरल सेक्रेटरी जलगम तिरुपति राव ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के गंगास्थान पर वाक़े IMA हॉल में 26, 27, 28 तारीख को हरी दिल ध्यान योगा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा, लिहाजा मुकामी अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए रोज़ा मुनक़िदा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की IMA जिले जनरल सेक्रेटरी जलगम तिरुपति राव ने की ख्वाहिश। तेलंगाना एमसेट के नताज जारी, एग्रीकल्चर में 86% और इंजीनियरिंग में 80% तलबा कामयाब। तेलंगाना एमसेट के नताज जारी कर दिए गए। 86% तलबा एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग में कामयाब हुए। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मान साहब टैंक हैदराबाद में हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ नताइज का इजरा किया। एमसेट एग्रीकल्चर के शोबे में 84% लड़की और 87% लड़कियां पास हुई है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 79% लड़के और 82% लड़कियां पास हुई है। नताइज सरकारी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि दाखिला के अमल से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर KTR की अमेरिका में निक्की हेले से मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दौरा अमेरिका में मसरूफ़ तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सफ़ीर व गवर्नर जुनूबी कैरोलिना की हेले से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात खुशगवार रही, जिसमें अमेरिका हिंद ताल्लुकात के वसी तर पस मंज़र में हैदराबाद और तेलंगाना की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर वसी तर तबादले ख्याल किया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा, निक्की हेले से मुलाकात खुशगवार रही। इस मुलाकात में अमेरिका हिंद ताल्लुकात के वसी तर पस मंज़र में हैदराबाद और तेलंगाना की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर वसी तर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इन्होंने निक्की से मुआशियात, इंतखाबात और सियासत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ ही इन्होंने सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होने पर निक्की को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तारक रामा राव ने इनके साथ ली गई तस्वीर को भी पोस्ट किया। 5 जून से धरनी टाउनशिप में ओपन प्लाट व मुख्तलिफ मरहले पर तामीर किए गए मकानात को हराज के तहत फरोख्त करने का रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में फ्री बेड इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि 5 जून से 8 जून तक कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में हराज का अमल सुबह 9 बजे से जारी रहेगा। नीलामी में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार क़ब्ल अज़ वक्त 10,000 रुपये कलेक्टर कामारेड्डी के नाम पर DD की शक्ल में अदायगी अमल में लाने के बाद शिरकत करने की तजवीज़ दी और इस तरह से हराज में शिरकत करने वाले अफराद इनसे मुताल्लिक़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता व दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात अपने साथ ला सकते हैं और 100 गज फ्लैट 8 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस समेत अपनी मिल्कियत बनाने की सहूलत हासिल रहेगी। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी व रूरल मंडल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचूराम भास्कर रेड्डी ने रखा संग बुनियाद।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी को तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत 6 करोड़ 80 लाख रुपए मालियती रकम से आटू नगर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए मुकामी आरडीओ राजू गौड, म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर के हमरा बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी व रूरल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ जिले रैतु बंधु सदर अंची रेड्डी, काउंसलर, अवामी नुमाइंदे, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। सिविल सर्विसेज में मुंतखबा निजामाबाद जिले के महश और डॉक्टर दीप्ति चौहान को प्रशांत रेड्डी की मुबारकबाद। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा इम्कानात तामीरात और असम्बली उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सिविल सर्विसेज में 200 रैंक हासिल करने वाले निजामाबाद जिले बोधन के महश और 630 रैंक हासिल करने वाली डॉक्टर दीप्ति चौहान को मुबारकबाद पेश की है और इनके मुस्तकबिल में मज़ीद आला मुकाम पर पहुँचने के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्तगी। वाज़ेह रहे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा सिविल सर्विसेज नताइज में निजामाबाद जिले से महज 200 और दीप्ति चौहान ने 630 रैंक हासिल किए। चाशुंबे के एक फसीह शकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले कतठम महश ने मंगल को जारी करदा सिविल नताइज में ऑल इंडिया 200 रैंक हासिल किया है। महश के वालिद रामुलू महकमे बरखी में लैंड इंस्पेक्टर और माँ महकमे सेहत में ANM के तौर पर काम करते हैं, जिनका ताल्लुक मुतवस्सित ख़ानदान से है। 200 रैंक हासिल करने वाले महश को IAS मिलने का इम्कान है। कुंठा महश की तालीम निज़ामाबाद में जारी रही। वालिदैन खुश है कि इनके बेटे ने सिविल में टॉप रैंक हासिल किया। अलावाजी निज़ामाबाद शहर के शिरडी साई कृपा नगर की डॉक्टर दीप्ति चौहान ने सिविल सर्विसेज में 630 रैंक हासिल किया है। दीप्ति के वालिदैन कर्नूल जिले इंगाला मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं। वालिद किशन लाल ग्रामीण बैंक मैनेजर, वालिदा एक सरकारी टीचर है, जबकि शौहर प्रवीण हैदराबाद में MDR तो डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ससुर वेंकटैया मौजूद RDO निज़ामाबाद है। दीप्ति ने वनपर्ती में 10वीं जमात की तालीम हासिल की और हैदराबाद के श्री चैतन्या जूनियर कॉलेज से इंटर मुकम्मल किया और 2017 में रिम्स मेडिकल कॉलेज आदिलाबाद से MBBS मुकम्मल किया। IAS में 3 बार नाकामी के बाद चौथी मरतबा अपना हदफ हासिल किया है। वो तिबी खिदमात से मुतमईन नहीं थी। जिंदगी ने तमाम शोबों में अवामी खिदमात के मकसद से सिविल सर्विसेज की तैयारी की, जिसके लिए शौहर और ससुर की जानिब से हौसला अफजाई मिली। बोरगाम के मेडिकवर हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप का मुकामी सरपंच पार्था वानी ने इफ्तिताम अमल में लाया। रेंचल मंडल के बोरगम देहात में वाक़ ग्राम पंचायत में मेडिकवर हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाया गया। इस कैंप में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुकामी सरपंच पार्था वाईसाई रेड्डी ने शिरकत करते हुए तिब्बी कैंप का इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन रेड्डी ने कहा कि मेडिकवर हॉस्पिटल की जानिब से कई मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसके तहत बोरगम में इनेकाद अमल में लाए गए तिब्बी कैंप के तहत BP, शुगर जैसे अमराज में मुब्तला अशखास का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच पार्था वानी, नायब सरपंच फेरोजुद्दीन, पंचायत सेक्रेटरी सुमन, तिब्बी अमला डॉक्टर मोहन रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। ఇలా బోర్గం గ్రామంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశాము। సర్పంచ్ గారు ఇక్కడ ఉన్న కమిటీ సభ్యులందరూ ఆహ్వానించారు ఇక్కడ మా గ్రామంలో పెట్టండి మా ప్రజలందరికీ సేవ చేయండి। जूनियर लेक्चरर्स और अकाउंट्स ऑफिसर्स के इम्तिहान की तारीख का ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मज़ीद 2 इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया, जो पेपर लीक होने की वजह से मनसूख कर दिए गए थे। इन इम्तिहानात में महकमे बल्दी नज़्म में अकाउंट्स ऑफिसर की भर्ती का इम्तिहान और जूनियर लेक्चरर्स की भर्ती का इम्तिहान शामिल है। इन 2 इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अकाउंट्स ऑफिसर की तकर्रुर के लिए इम्तिहान 8 अगस्त को होगा। TSPSC ने कहा कि जो जूनियर लेक्चरर्स की तकर्रुर के लिए 12 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इम्तिहान मुनक़्क़िद होंगे। एरगटला के BRS पार्टी दफ्तर में मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कायदीन की जानिब से आयद करदा बेजा इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत की। एरगटला मंडल BRS पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम ने मुकामी BRS पार्टी दफ्तर में सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकयाती खिदमात के अलावा इनकी कामयाब नुमाइंदगी के सबब जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर बेजा इल्ज़ामात आयद करने वाले कायदीन को बनावटी बातों से गुरेज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में MP उपेंद्र रेड्डी, ZPTC G राजेश्वर, MPTC इस मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा अवामी नुमाइंदे BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। అబద్ధాన్ని నువ్వు 10 సార్లు అంటే నిజమని నమ్ముతారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు। ఒకవేళ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక ఇక అదే పనిగా పెట్టుకొని ఇంకేం పని లేనట్టు కేవలం ప్రెషర్ పైనే
మాట్లాడడం సరైన పద్ధతి కాదు. ఒకవేళ నిజంగానే నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఏరియడ్ల మండలానికి రా. ఏరియడ్ల మండలంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులపైన చర్చ చేద్దాం. डिचपली मंडल के धर्मराम देहात में NTR की 7 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। डिचपली मंडल के धर्मराम देहात में नंदा मोरी तारक रामाराव की 7 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी, मशहूर मारूफ कॉमेडियन अदाकार बाबू मोहन, NRI रवि कुमार, कमा संगम खम्मम, जिले सदर रामा राव, जिले से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन अमरनाथ बाबू, यादव गौड, गड़गू गंगाधर, केशव लू, मशहूर मारूफ एडवोकेट M राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की के लिए दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने वाले साबिक़ वज़ीर आला NTR ने तलबा को स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, ख़वातीन को मिल्कियत में हक़ के अलावा 2 रुपये किलो चावल के साथ साथ दोपहर में मिड डे मील प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। దేశ తెలుగు జాతిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆణిముత్యంగా నట జీవితంలో ఒక నటరత్నగా, నట సార్వభౌముడిగా ఎంతో విశ్వవిఖ్యాతి పొందినటువంటి పద్మశ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ రోజున నట జీవితానికే కాక నటనా రంగానికే కాక ఆ రోజున చిత్ర నిర్మాణంలో కానీ దర్శకత్వంలో కానీ అన్ని పాత్రల్లో కూడా మరి సినీ రంగంలో మకుటం లేని మహారాజు ఎన్టీ రామారావు। रियासत तेलंगाना में अनकरीब भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार पर आएगी। वो तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का MP DRV ने किया इज़हार। एरबली मंडल के मराकज़ पर बीजेपी पार्टी दफ्तर का MP DRV ने इफ्तिताह अमल में लाया। इससे कबल साटापुर गेट से बड़े पैमाने पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ख़वातीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में बीजेपी फतेह हासिल करने के मकसद के तहत कारकुन खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी बोधन हल्के के सीनियर कायदीन M प्रकाश रेड्डी, मोहन रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी सुधाकर चारी, साबिक़ फ्लोर लीडर M रामाराजू व दीगर ने शिरकत की। కార్యాలయం ఇనాగ్రేషన్ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇదే జోష్ కంటిన్యూ చేయండి. రాబోయే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం బోధనలో కూడా ఎగిరేది భారతీయ కమలం పువ్వు జెండా. ఈ జోష్ ఎలక్షన్ల దాకా మనం కంటిన్యూ చేసి బోధనలో రామరాజ్య స్థాపన ఖచ్చితంగా చేయబోతున్నాము। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब को बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाए। मुनक़िदा इजलास में CM KCR का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीरा, ज़िले कलेक्टरान, CPs, SPs से तेलंगाना एमसेट के नताज की जाई अमल में लाई गई। हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों पर की सबक़त हासिल। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले जिले के तलबा को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने रूरल कैंप दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मोरताड़ मंडल के मुस्तहिक़ीन में की फराहमी। CM KCR व आर्मर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।